Hi, Good morning. Good Good morning. morning, madam. Very good morning. Wow, a beautiful top, Deepti. Thank Yeah, you. Birthday girl. Birthday girl, Bitty G is birthday girl now. The crown keeps shifting every day. So for Bitty Ji and Priyas, both the sons, today in Brahm Muhurat, I actually sent blessings. आज मेरा बेटा का भी है दीप्ति मैम. Bless him also. हाँ, देवांश. क्या नाम है आपके बेटे का? देवांश. Devansh, okay. Please wish Devansh a very beautiful life, something that he's always dreamt of doing. Yes, ma'am. Whatever Thank it is, you. his dreams. We don't know his dreams, but then I'm sure that he'll be living his dream life. Yes, thank you, ma'am. Thank you You so too, much. the beautiful mother, forever young. from all of us. Yeah, of Thank course. you, Anything thank you, coming Joseph. from me is definitely from all of us only. I mean, it's just that I'm the representative, but all of us extend our wishes to your son. Thank you, thank you. Yeah. So yeah, we continue today with the concluding part of the book, The Magic, which is called Your Magical Future. और आगे क्या है, अभी हम चैप्टर्स दोबारा शुरू करेंगे. अगर आपके कोई भी लाइफ में है जिनको आपको लगता है कि दे नीड दिस बुक राइट नाउ और दे आर गोइंग थ्रू सर्टेन चैलेंजेस, या उनको अपनी लाइफ बहुत ब्यूटिफाई करनी है, अपनी ड्रीम लाइफ लीड करनी है, तो उनको वी कैन इनवाइट देम ओवर फॉर दीज सेशंस फ्रॉम फ्यू डेज फ्रॉम नाउ. आई थिंक ये आज और कल में हमारा खत्म हो जाएगा. और इसमें मैजिकल फ्यूचर में ये टेलीस्कोप बना हुआ है एक खिड़की के थ्रू, और वो इंफिनिटी की तरफ प्रोजेक्टेड है. दैट मीन्स दैट you know, however big your goals are, wherever you want to reach in your life, you know, focus your gratitude. That is, इसमें आगे वो taper हो रहा है and there's a lot of blessings, gratitude coming out from there. तो इस तरह से with gratitude you can transform any situation, right? So this is how beautiful the power of gratitude is. So we'll just read it. So yes, Vijay ji, your magical future. Thank you, ma'am. Good morning to everybody. Your magical future. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. I quote, "To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven." Johannes A. Gertner, 1912-1996, professor, theologian, poet. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it as a guide. 3 days a week of Remember the Magic, or combining it with 2 other magical practices of your choosing, should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third. 4 days a week of Remember the Magic, or incorporating it with the 3 other magical practices of your choosing.
will maintain your gratitude and accelerate the magic. 5 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every areas and circumstances of your life. 6 or 7 days a week of Remember the Magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. Yeah, so this is first part of the concluding chapter that अभी तक हमने foundation build कर दी है, तो जब भी कोई building बन रही होती है ना, so the best and the most important thing is to have a very strong foundation. वो foundation हमने build की है सारा gratitude करके अपने हर area के बारे में. इसमें भी अभी आगे के लिए भी ये लिखा हुआ है that अपने you know like वो जो आगे के लिए भी सारे practices आप करते रहो. मतलब ये उन लोगों के लिए है who will not be doing the magic book again. लाइक जिन्होंने एक बार पढ़ ली अब वो ग्रैटिट्यूड लगातार करते रहेंगे. दिस इज ओनली फॉर देम. ओके, बट देन हम तो दोबारा शुरू करेंगे. तो इसमें यही है दैट मतलब मनी पे भी फोकस करो, अपना करियर पे भी करो. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है किसी को बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए, वो मिल जाता है लेकिन जॉब चली जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है, उसका फायदा क्या है फिर? जिंदगी तो फुलफिल वे में एंजॉय करनी होती है ना. सो दैट इज हाउ कीप डूइंग डिफरेंट प्रैक्टिसेस. इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप आगे मतलब अगर आपने पूरी किताब एक बार अच्छे से कर ली है, उसके बाद रोज कोशिश करो कि 3 प्रैक्टिस करो. तो हम कर सकते हैं ना. इवन इफ वी आर रीडूइंग द बुक अगेन, अगर आपने बहुत बार ये बुक की हुई है, सो डू एटलीस्ट 3 प्रैक्टिसेस एवरी डे, है ना. काउंट माई ब्लेसिंग्स हम कर सकते हैं, रिमेम्बर द मैजिक कर सकते हैं, और साथ में इसके अलावा कोई भी मैजिकल हेल्थ, मैजिक मनी, मनी मैग्नेट, आपको जो ठीक लगता है आप करो. बट एक दिन में 3 प्रैक्टिसेस करने को रॉन्डा बर्न बोल रही हैं. इसका मतलब है दैट वी हैव एक्चुअली कम टू दैट लेवल जहां पे अब हमको स्टेप अप करने की जरूरत है. हमने पावर बुक में एक वर्ड पढ़ा था, आई डोंट नो आप लोगों को याद होगा कि नहीं. इट वाज कॉल्ड स्टेप अप द वॉल्यूम. ओके, सो स्टेप अप द वॉल्यूम इन द प्रैक्टिसेस, इन द डेप्थ ऑफ द प्रैक्टिसेस. उन्होंने कहा है कि लगातार अपनी जिंदगी में आपको स्टेप अप द वॉल्यूम करने की जरूरत है ना. So volume of what? Obviously gratitude. So and in different areas. कभी कभी हमको लगता है कि ठीक है इस एरिया का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस एरिया में बहुत सारा फोकस करके रखते हैं. बट रिमेंबर बाकी एरियाज ऑफ द लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, एंड यू नेवर नो, लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग. सो ऑलवेज फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. यू नो, कभी रिलेशनशिप्स का कर लो, कभी कुछ काउंट माई ब्लेसिंग्स में कर लो. डजंट मैटर कि अगर हमको असाइनमेंट्स में नहीं करना है. But keep doing all that because it says you are the builder of your life. अपनी जिंदगी आप बिल्ड कर रहे हो तो करो ना वैसे जैसे करना है. ठीक है, मत सोचो किस्मत में ये, मत सोचो कि पास्ट में अभी तक क्या हुआ था. हम सब यहाँ पे हैं, हम सबका एक पास्ट है ना, जिसमें हमने दुख देखा है, हमने बहुत ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्राइफ देखा है, हमने शायद पैसे का स्ट्रगल देखा होगा, हमने करियर ऊपर नीचे जाते हुए देखा होगा, हमने बिजनेस ब्रेकडाउन देखा होगा. हम सबका एक पास्ट है. ठीक है, बट अब पीछे मुड़ के मत देखो. एक हार्ट टॉली अपनी पावर ऑफ नाउ बुक में बहुत स्ट्रिक्टली ये बोलते हैं कि इफ यू ड्वेल इन द पास्ट यू विल नेवर बी एबल टू मूव. यू नो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक आपकी जो शर्ट है वो कहीं से किसी ने पीछे से पकड़ी हुई है. अब आप आगे कैसे जा पाओगे? आपकी शर्ट को बांध के आपने रखी हुई है एक नेल से, यू नो, एंड यू आर नॉट एबल टू, मतलब एक पोल है जहां पे आपकी शर्ट बंधी हुई है, उससे आप आगे कैसे जाओगे? ठीक है, तो वो शर्ट ही उतार के फेंक दो, छोड़ दो उसको वहीं पे. ठीक है, एंड मूव फॉरवर्ड एंड वेयर न्यू क्लोथ्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डोंट ड्वेल इन द पास्ट. हाँ, अगर पास्ट आपको बहुत अच्छा हैप्पीनेस का जोन देता है तो आप करो. पास का मैंने ये सुना है कि मेडिटेशन, पास मेडिटेशन होता है कि कोई भी चीज पकड़ लो. मे बी यू कैन थिंक ऑफ अ टाइम जब आप किसी बहुत अच्छी वेकेशन पे गए थे. 10 मिनट आप उसी में फोकस लगाओ और उसी के बारे में सोचो कि वाओ ये किया था, आई वाज लुकिंग सो गुड, मेरी फोटोज कितनी अच्छी आई थी, ऐसे किया था, वैसे किया था. थिंक मोर अबाउट दोज थिंग्स दैट गिव यू जॉय एंड हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन. बस पास्ट में बस उसी से उतना ही रिश्ता है आपका. ठीक है,
बाकी फ्यूचर के बारे में सोचने की आपसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर हमारा प्रेजेंट में क्रिएट हो रहा है, इस मोमेंट में। इस मोमेंट में मेरे क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, उससे डिसाइड होगा कि अगला मोमेंट मेरा कैसा रहेगा, है ना। और जिन्होंने इब्राहिम हिक्स ने जो बुक में लिखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली किताब में, कि 17 सेकेंड्स में आप अपना मोमेंटम सेलुलर लेवल पे आप अपनी बॉडी का चेंज कर सकते हो। तो सपोज अगर आपको पास्ट का कोई दुख है, लैक है, लिमिटेशन है, या कोई ऐसी चीज ऐसी लग रही है कि विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, है ना, 17 सेकेंड्स आप ड्वेल करो उस चीज को सोचने में जो आप चाहते हो देखना अपनी जिंदगी में। ठीक है, अगर सोचा नहीं जा रहा है, मन बहुत चंचल हो रहा है, सोचा नहीं जा रहा है, दिमाग नहीं ठीक हो रहा, आप लिख लो, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर बहुत लंबे लंबे सेंटेंस भी नहीं लिखे जा रहे, तो आप सिर्फ शुक्रिया, वाहेगुरु, थैंक यू, जो आपको लिखना है, ठीक है, वो आप लिखो। और वो लिखते जाओ कम से कम 17 सेकेंड से लेके 2 मिनट्स तक। ठीक है, इस तरह से यू विल सी दैट you know something unfolds in front of you, and there be excited for a beautiful outcome. And this is how science works. Like I'm telling you most of the things according to the scientific research studies and all that. Okay, that अगर आप 17 सेकेंड या 2 मिनट तक अपना कोई प्लेजेंट थॉट या अपना फ्यूचर या अपनी हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, टुगेदरनेस, जो भी चीज आपको चाहिए अगर आप होल्ड कर सकते हो, then you will see that you will start, उसमें लिखा हुआ है ना फर्स्ट लाइन, you're the builder of your life, so better be the builder of your life. You have to be the builder of your life. Let us all build the life the way we want to build it, है ना। जो प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी द स्काई इज पिंक, तो उसमें था ना एक डायलॉग कि उसके बच्चे से पूछा था कि बहुत डांट लगाई थी टीचर ने, और तो उसका बच्चा रोता रोता घर आया था और बोलता है कि आज टीचर ने मुझे बहुत डांटा। तो प्रियंका चोपड़ा ने उससे पूछा, वो उसकी मदर थी उस मूवी में, कि why are you crying? So he said that teacher scolded me because मैंने स्काई को पिंक बोला, उन्होंने कहा तुमको स्काई का कलर भी नहीं पता है कि किस तरह से करते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा ने अपने बेटे को बोला that it is your life, it is your drawing, you have drawn it, you know, you have the right to choose the color of your sky, and if your sky is pink, you know, nobody can say anything about it. You have done the right thing, go ahead and choose the colors of the sky, whatever it is that you want to do. Okay, so we are the creators of our life, and we will be creating it the way we want to. Okay, and with gratitude and law of attraction, कुछ आप दो ये बहुत powerful laws हैं, जब इनको आप साथ में जोड़ देते हो, you will see कि बहुत सुंदर outcome आपको नजर आएगा। बट अपने thoughts में, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, सोचने में, इन सब में alignment होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोल कुछ और रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, बोल रहे हो वाओ आई हैव सच माय परफेक्ट बॉडी वेट, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट बॉडी वेट, ठीक है, मन में सोच रहा है मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, मैं फिर से ऐसे लग रही हूँ, ऐसे नहीं, है ना। सारे थॉट्स अलाइंड होने चाहिए, दे ऑल हैव टू बी डायरेक्शनल इन वन डायरेक्शन ओनली। ओके, सो दे ऑल हैव टू बी इन अलाइनमेंट। अगर वजन कम करना है, कोई स्पेसिफिक टारगेट सोचा हुआ है, सपोज व्हाटएवर, सपोज 59 kg या जो भी है, देन 59 kg ही सोचना है, बोलना है। ठीक है, इमेजिनेशन में ये करना है, वही लिखना है। इस तरह से जल्दी, बहुत जल्दी आप अपने लाइफ, मतलब यू विल बिकम एन एल्केमिस्ट, राइट, जो इसकी लास्ट लाइन है, that कोई भी magical practices of your choosing आप करो, and that will make you an alchemist who can turn everything into gold. Okay, so we have to become capable of that now. As I said, I think I need to listen to more of these and apply. कहते हैं ना जो बोलते हो आपके अपने लिए ही होता है। तो मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस है, ऑल्दो इसमें ये है दैट अलग अलग हमको बताएंगे कि आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या करना है, बट हम तो मैजिक बुक दोबारा से करते हैं, है ना, तो हम बुक के हिसाब से भी चलेंगे। तो हमारी वैसे भी 2 प्रैक्टिसेस रोज होती है, हमारी काउंट माय ब्लेसिंग्स रोज होती है, मैजिक रॉक हमारी रोज होती है, और जो असाइनमेंट हमको मिलता है वो भी रोज होती है। लेकिन अगर किसी एरिया में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो वो भी हमको करना पड़ता है। जैसे अगर रिलेशनशिप का चैलेंजेस आ रहा है, तो आपको रिलेशनशिप का प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगा। जैसे 2 प्रैक्टिसेस है रिलेशनशिप की, है ना, एक तो फर्स्ट वाला है चैप्टर नंबर 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स, और एक हील रिलेशनशिप है। तो अगर क्लोज रिलेशनशिप है तो मैजिकल करेंगे, और अगर टूटा हुआ रिश्ता है तो फिर हील योर रिलेशनशिप्स करेंगे, इस तरह से, है ना। सो लेट्स रीड इट। हाँ जी विजय।
Magic practice recommendations to keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationship, career, money, and the material things you own. You could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. The following recommendations will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Following the recommendations in the relevant areas for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. Relationships, magical relationships, magic dust everyone, magically heal your relationships, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Health, magical health, magic dust everyone, magic and miracles in the health, the magical air that you breathe, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on the people you don't know without photographs. Remember the magic. Money, magic money, the money magnet. If you haven't done the money magnet magical practice before, make sure you complete all the steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 4. The magic check, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Career, works like magic, magic dust everyone. The magic wand, when using the magic wand practice for your career, you can also send success to people. Wishing success for others will accelerate the success in your own life. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Your desires, magic dust everyone, make all your wishes come true. If you haven't done the practice of make all your wishes come true before, make sure you complete all the steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 3 before your very eyes. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Yeah, one sec. Yes. So इसमें देखो आप लोगों ने ना बहुत सारे सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर बहुत जल्दी अगर आपको टर्न अराउंड स्टोरी चाहिए तो आप इतने दिन के लिए इतनी बार करो, यू नो मतलब कुछ कुछ होता है 33 बार आप 3 डेज के लिए लिखो, 55 टाइम्स 5 डेज के लिए लिखो, 66 टाइम्स आप 6 डेज के लिए लिखो, 99 जो भी होता है ना। इसमें रोंडा बर्न ने बहुत क्लियरली बोला है कि आपको अगर कुछ परमानेंट चेंज चाहिए अपने लाइफ में तो आपको 21 दिन 21 days you have to repeat the practice at a stretch. Okay, so 21 of course we know that न्यूरो प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर अब आपको फंडामेंटली कोई चीज अपनी लाइफ में बदलनी है, जैसे अगर पैसे की सिचुएशन आपकी खराब चल रही है
या रिलेशनशिप्स की आपकी खराब चल रही है, या आपका कुछ और मतलब बिजनेस में बहुत मतलब बहुत ज्यादा यू वांट सक्सेस बट यू नो एज ऑफ नाउ उस हिसाब से नहीं हो रही है, या किसी भी एरिया में, ठीक है, तो 21 डेज हमको सिंगल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो वाली उस एरिया की। और इसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये इस बुक का पीडीएफ हम दोबारा से ग्रुप में डाल देंगे, आप एक बार अपने आप भी रीड कर लेना, बिकॉज हम सबकी जर्नी अलग अलग है। मतलब करियर वाला चैलेंज हो सकता है हमारा, रिलेशनशिप का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है। तो जिस भी एरिया में हमको चैलेंज आ रहा है वो वाली प्रैक्टिस हमको लगातार 21 डेज के लिए करनी होगी। एंड वी विल हैव टू एंड देन यू विल फंडामेंटली सी दैट वो चीज में परमानेंट शिफ्ट आ रहा है। वैसे कहते हैं कि 66 डेज लगते हैं टोटल शिफ्ट होने में रिसर्चेस के हिसाब से, बट 21 दिन में आपकी वो चीज का मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है दैट इट प्रोपेल्स इन द डायरेक्शन दैट यू वांट इट टू। ओके, सो नाउ वी व्हाटएवर, अगर हमको बहुत ही पावरफुल चेंज चाहिए अपने किसी भी एरिया में, सो एंड्योरेंस, ओके, एंड परसिवियरेंस, 21 days. So 2 plus 1 is 3, which is a number of creation. So a new beginning, a new creation will start happening in your life. And this is how powerful it is. Okay, so we continue with your magic rock. Anji Vijay ji, padhiye please. Yes, your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for. हाँ, और मैजिक रॉक के बारे में कहा है कि अगर आपने ऑल 28 डेज अगर मैजिक रॉक को हाथ में रख के आपने ग्रेटिट्यूड दिया है रोज रात को सोने के पहले, then you now that rock has got the same power, जैसे मंदिर में जैसे मूर्ति होती है भगवान की स्टैचू, तो ऑब्वियसली ऑफरिंग दे दे के वहां पे भजन चलते रहते हैं, भगवान के गुणगान चलते रहते हैं, उसके कारण यू नो उस मूर्ति में भी एक पावर आ जाती है कि लोगों की विशेष वहां पे पूरी होने लग जाती है ना। फिर हम उसी मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं कि उस मंदिर की बहुत मानता है, वहां पे जाके कुछ भी मांगो तो विश पूरी हो जाती है। आपका मैजिक रॉक भी अभी तक वैसा बन गया है, क्योंकि वो 5 एलिमेंट से बना हुआ होता है रॉक। तो उसको रोज हाथ में पकड़ के आप अपनी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहते हैं कि हमारे पाम में बहुत एनर्जी होती है यू नो, क्योंकि सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स की फायरिंग जो होती है वो उसी इंटेंसिटी में वो जो एनर्जी है वो हमारे मैजिक रॉक में एब्जॉर्ब हो जाती है। पत्थर वैसे भी बहुत एब्जॉर्बेबल होता है, वी ऑल नो दैट। सो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो कौन सी एनर्जी होती है, वी ऑल नो दैट, ग्रैटिट्यूड की, है ना। क्योंकि हम पूरे दिन को स्कैन कर करके ढूंढते हैं दैट व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर, और उसमें से एक बेस्ट चीज निकालते हैं, फिर उसको थैंक यू बोल के फिर सो जाते हैं। तो वो जो पत्थर है छोटा सा, जो एक रैंडम सड़क के किनारे रखा हुआ पत्थर था, दैट हैज द पावर ऑफ गॉड नाउ, ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दैट एनर्जी जो उसमें गई है। तो अब उसमें एक वो वैसी पावर आ गई है कि आपको कभी भी कभी लो फील हो, या कभी भी आपका कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर है, विश है यू नो, तो उसको अपने साथ रखो, अब मैजिक स्टोन को साथ लेके आप जा सकते हो, और कभी भी तो छू के उसको याद आ जाएगा कि आपको थैंक यू होना है। और दूसरा, आप उससे डिजायर ले सकते हो अपना, मतलब यू कैन टॉक टू योर मैजिक स्टोन एज इफ यू आर टॉकिंग टू गॉड, एंड यू कैन से दैट you know, this is how, this is the kind of life I want. I mean, the magic rock will become your best friend now, and you can talk to it that this is what I want, and I'm so happy that you know मेरी जिंदगी आगे की इस तरह से दिख रही है। जो भी आपका डिजायर है आप उससे अलाइन करो, पत्थर को हाथ में पकड़ के। जैसे मंदिर में जाके हम यू नो लाइक भगवान से मांगते हैं कभी कभी, या शेयर करते हैं अपनी इश्यूज, वैसे आप अपने मैजिक रॉक के साथ भी करते हो, कर सकते हो अब से, बिकॉज उसमें वो पावर आ गई है। You can tell magic rock that I really want this, and you know, that way, and I'm sure it will listen to you. Second, now we'll talk about the magic dust practice. इसमें एक पावर होती है मैजिक डस्ट में, जो हमने अभी पीछे जितने भी रिमेम्बर, मतलब वो जो हमने पढ़े थे कि योर मैजिकल प्रैक्टिसेस, उसमें आपने देखा होगा कि जब भी आपको अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लेके आना है,
और अगर बहुत फास्ट चेंज लेके आना है तो आपको वो एनर्जी किसी और को देनी पड़ती है ना। जैसे अगर उसमें ना जैसे मैजिक वॉन्ड बोला हुआ था और मैजिक डस्ट एवरीवन, सो मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड, ये प्रैक्टिसेस आप किसी और के लिए करते हो, ठीक है। तो जब आप किसी और के लिए करोगे वो भी, और जितना आप उनके लिए करोगे जो आपकी क्लोज फैमिली से कनेक्टेड नहीं है, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बदलेगी। तो इसीलिए मैजिकल हेल्थ में या मतलब हेल्थ प्रैक्टिसेस में या मनी प्रैक्टिसेस में या करियर प्रैक्टिसेस में यही लिखा हुआ है ना, दैट यू डू इट फॉर समवन एल्स। आप किसी और को मैजिक वॉन्ट करो किसी और की करियर सक्सेस के लिए, वो एनर्जी बहुत मल्टीप्लाई होके घूम के आपके पास आएगी। अगर हम अपने लिए ही करते रहते हैं तो वो तो सेल्फिश प्रेज होती है, वो तो डेफिनेटली होना भी चाहिए और वो हो भी जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन जब आप सेम चीज किसी और के लिए करते हो, ठीक है, तो वो एनर्जी कम्स बैक टू अस। तो इसीलिए मैजिक वॉन्ड आपने देखा होगा सब में, अगर आपको पैसा चाहिए, आप लोगों को जिन जिन को भी आपको लगता है पैसे के चैलेंजेस हो रहे हैं, आप उनको ब्लेस करो, उनके लिए मैजिक वॉन्ड करो, मतलब जादू की छड़ी बन जाओ। मैजिक वॉन्ड इज जादू की छड़ी, राइट। कि मतलब आपको 1 मिनट मिनिमम विजुलाइज करना है और उनको विश करना है, उनकी फोटोज सामने रख के, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस या मनी या हेल्थ या करियर सक्सेस या ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, अ ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, और वट एवर इट इज, जो आपको जो चाहिए, आपको लगता है किसी और को वो जरूरत है, तो उनके लिए सेल्फलेसली बैठ के अपने किताब पेंसिल पेन निकाल के आप उनके लिए ब्लेसिंग्स लिखने लग जाओ। आप देखना, आप हिस्ट्री बनाओगे, टर्न अराउंड स्टोरी। दिस इज हाउ पावरफुल दिस प्रैक्टिस इज। इसीलिए मैजिक वॉन्ड सब में था, है ना। और ये मैजिक डस्ट भी जो होता है, ये हम औरों पे करते हैं, ठीक है, किसी और पे करते हैं जहां हमें लगता है हमें करने की जरूरत है। आप ट्रैफिक पे कर सकते हो, आप मैजिक डस्ट बिल्डिंग्स पे कर सकते हो, आप मैजिक डस्ट उन लोगों के लिए कर सकते हो जो फ्लड में रेलोकेट, जिनको होना पड़ा, जिनके घरों में पानी घुस गया है, आप मैजिक डस्ट उनको कर सकते हो, पॉलिटिशियंस को कर सकते हो, ठीक है। आप मैजिक डस्ट किसी कंट्री को कर सकते हो जहां पे आपको लगा है कि अच्छा कोई स्ट्राइफ आया है, टॉर्नेडो आया है, अर्थक्वेक आया है, वहां कर सकते हो। मैजिक डस्ट आप अपने ऑफिस के लोगों पे कर सकते हो, मैजिक डस्ट आप अपने लैपटॉप पे कर सकते हो, मैजिक डस्ट आप अपने बच्चों पे, अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली मेंबर्स पे कर सकते हो। मैजिक डस्ट आप किसी पे भी, मतलब कार पे कर सकते हो, कार हमेशा सेफ सिक्योर रहे और हमको अच्छे से कहीं और पहुंचा के ले जाए, सो इस तरह। सो मैजिक डस्ट आप स्टोर्स में और मॉल्स में कर सकते हो, बिफोर यू गो, बिफोर यू एंटर अ मॉल, अगर आप कोई स्टोर में कोई चीज लेने के लिए जा रहे हो तो आप मैजिक डस्ट वहां कर सकते हो, दैट यू गेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग विच इज मेड फॉर यू फ्रॉम दैट स्टोर। ओके, सो दिस इज हाउ मैजिक डस्ट में बहुत पावर होती है। और अगेन ये किसी और के लिए होती है ना, तो ये एनर्जी जो होती है, जो हमारी लाइफ से किसी और के लिए निकलती है, ये घूम के हमारे पास आती है, ठीक है, और बहुत पावरफुली, बहुत फोर्स के साथ आती है। सो लेट्स अप्लाई द मैजिक डस्ट प्रैक्टिस, यानी कि जादुई धूल, मोर एंड ऑल द टाइम। ओके, इवन अगर आप वॉक करने जा रहे हो, तो आज मैंने आपको बताया था ना कि वन डे व्हेन आई केम इन द कैब, बिकॉज मेरे पास कार नहीं थी, मेरी कार सर्विसिंग के लिए गई थी, तो मैं कैब से आ रही थी। सो नॉर्मली आई लाइक टू सेल्फ ड्राइव, बिकॉज मेरा वो टाइम होता है मेरे अपने मोमेंट के लिए, मैं अपने आप, बस मुझे वही टाइम मिलता है आने और जाने का अपने साथ में, ठीक है, अदरवाइज तो थोड़ा ऐसे ही चलता रहता है स्केड्यूल मेरा। सो आई यूज दैट डे, एंड मैं यही देख रही थी कि मैं कितने लोगों को ब्लेस कर सकती हूँ, और मैं जितना ज्यादा करती गई मुझे उतने ज्यादा लोग मिलते गए, जितने ऐसे दिखते गए बेचारे जो साइकिल पे जा रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, मुझे दिखते गए और मैं ब्लेस करती रही। तो मेरी वो पूरी वो ब्लेस वाली राइड थी। तो अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, या इफ यू टेकिंग योर बस और ट्रेन टू रीच समवेयर, or you're taking a cab or something, use that time to actually bless a lot of people and put magic dust on them, and then you see that how quickly your life starts becoming more and more beautiful, because fundamentally quantum level पे जैसे ही blessing की energy आपकी जिंदगी से, आपके लाइफ से, माइंड से निकलती है, वैसे ही like उसका सेलुलर लेवल पे बायोकेमिकली एंड फिजियोलॉजिकली आप चेंज हो जाते हो, मतलब आपके ब्लड का पीएच चेंज हो जाता है और वो अल्कलाइन बन जाता है। Can you believe it? Like उसमें इतनी पावर होती है। So let's read about the magic dust and please use it. I mean, I would urge you to use it more and more, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ एक टर्न अराउंड स्टोरी बन जाती है। हाँ जी विजय जी।
Yes. Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your, yes, part of your daily life. The other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drink, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. तो इसमें बता दिया आप किसी भी चीज के लिए मैजिक डस्ट कर सकते हो, किसी की हेल्प के लिए कर लो, आपको लग रहा है कि कोई पर्सन कोने में सड़क के किनारे बैठा बैठा बहुत दुखी सा हो रहा है, आप उसको मैजिक डस्ट कर दो। फिर अगर आपको लग रहा है कोई साइकिल चला चला के बेचारा कोई गरीब इंसान जा रहा है और चढ़ाई चढ़ रहा है कहीं पे, तो आप उसको मैजिक डस्ट कर दो कि उसकी बहुत जल्दी से कोई मोटराइज व्हीकल उसके पास आ जाए, कोई स्कूटी या कोई इस तरह की चीज, जो भी उसको चाहिए। फिर अगर आपको कोई बहुत ज्यादा, आपको पता है कि कोई बहुत सिक है, तो उस पे मैजिक डस्ट आप कर दो फॉर अ वंडरफुल एंड द बेस्टेस्ट हेल्थ पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई बच्चा, उसको बहुत एंजाइटी एग्जाम के लिए हो रही है, तो उसको मैजिक डस्ट कर दो ऑफ कॉन्फिडेंस एंड गुडविल, है ना। इस तरह से मेनी एप्लीकेशंस ऑफ द मैजिक डस्ट आर लिमिटेड टू योर इमेजिनेशन लिखा हुआ है। अब आपकी सोच जहां जहां जा सकती है वहां वहां पे आप मैजिक डस्ट करो। ठीक है, सो दैट इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज, लाइक। और सोचो, नॉर्मली इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका बॉस ग्रम्पी है तो उस पर मैजिक डस्ट कर दो। एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, अगर बॉस ग्रम्पी होगा तो बोलेगा अरे वो फिर शुरू हो गया, आज उसका मूड खराब है, ऐसे, है ना। मतलब ऐसे नॉर्मली बात करते हैं, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हीलिंग दे रहे हो उसको। आप मैजिक डस्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड गुडविल। अब वो बॉस है, इसका ये थोड़ी मतलब है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना। हम लोग इतने ज्यादा जजमेंटल होते हैं लोगों को लेके, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द अदर पर्सन्स लाइफ। सो नेवर जज पीपल की अच्छी है वो बुरी है, उसकी बातें पसंद नहीं है मुझे या उसकी बातें अच्छी लगती है, और वट एवर। एवरीबडी इज स्केलिंग अ जर्नी, है ना। मतलब सबकी जिंदगी में कभी दुख वो निकल रहा है, कभी कोई वेंट आउट कर रहा होता है, कभी कुछ होता है, तो इसलिए जज नहीं कर सकते। वेंटिंग आउट इज नॉट लाइक ऑन दैट बेसिस। अगर किसी का दुख, सपोज अगर आपको लगातार 10 दिन से बहुत पेन है दिल में, तो आप उसको वेंट आउट कर रहे हो ना किसी तरीके से करेंगे। कई लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं ऐसे में। ठीक है, तो यू नेवर नो दैट हाउ इट्स, व्हाट द पर्सन, व्हाई द पर्सन इज बिहेविंग लाइक दैट। बट ठीक है ना, हम मैजिक डस्ट डाल देंगे ऑफ विजडम। अगर आपको लग रहा है कोई स्टूपिड बिहेव कर रहा है आपके हिसाब से और हर बार वैसा हो रहा है, आप मैजिक डस्ट ऑफ विजडम एंड हैप्पीनेस डाल दो। ऑब्वियसली वो पर्सन हैप्पी नहीं है, ठीक है, तो हैप्पीनेस एंड विजडम की डाल दो। तो नॉर्मली अगर अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एम्पलीफाई करेंगे, उसकी बजाय हम उस पर मैजिक डस्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड गुडविल डाल देंगे। विजडम डालना है वो कर सकते हो। तो मैजिक डस्ट के साथ आप वो चीज भी अटैच कर सकते हो जो ब्लेसिंग्स आप उनकी जिंदगी में भेजना चाहते हो, जिस भी तरीके की, है ना। जस्ट सी की नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देन we'll stop here. The magic never ends. Let me see how big this is. I think इतना ही हम पढ़ पाएंगे विजय जी। Thank you so much. Thank you for taking the last moment call to read. Yes, thank you so much. Thank you so It was much. pleasure. So we'll go to the other book, The Power of the Subconscious Mind. और उसमें हमने कल एक बहुत सुंदर चैप्टर शुरू किया है relationships पे, that how to make your relationships very beautiful. और ये हम कंटिन्यू करेंगे आज पढ़ना। और कल हमने पढ़ा था दैट कभी भी गॉसिप मत करो,
और किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बिकॉज अगर आपकी जिंदगी से कोई नेगेटिव फीलिंग्स किसी के लिए निकल रही हैं तो वो मल्टीप्लाई होके घूम के हमारी जिंदगी को सेलुलर लेवल पे टॉक्सिक बनाती है। और टॉक्सिसिटी वर्ड यूज किया हुआ है और बोला है दैट यू विल बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल टॉक्सिसिटी एंड आपकी जिंदगी में डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सिर्फ बात की थी लेकिन आपके आते हुए पैसे रुक जाएंगे, मतलब पता नहीं होता है कहाँ का असर कहाँ होता है। और रिलेशनशिप्स में इमोशनली फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, इमोशनल, एनर्जी इनटू मोशन, है ना। इमोशन बहुत ज्यादा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। या तो हम हेट्रेड और बिल्कुल ही किसी को पसंद नहीं करते हैं, या फिर हमको कोई पर्सन बहुत पसंद आता है, तो उसमें इमोशनल क्वोशंट बहुत स्ट्रांगली होता है, दैट इज एनर्जी इनटू मोशन, है ना। तो उस तरीके से हमको रिश्तों को नेगेटिवली ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है। वैसे शेयर कर सकते हैं कभी, है ना, शेयरिंग इज डिफरेंट, बट कॉन्स्टेंटली वाइनिंग अबाउट इट इज समथिंग विच इज नॉट टू बी डन। ठीक है, मन में भी नहीं रखना है। अगर मन में भी आप नेगेटिव फीलिंग्स होल्ड करके रखते हो और उसको एंड्योर करते हो तो मेंटल टॉक्सिसिटी, और इट विल रिजल्ट इन बैक एक, नी पेन, शोल्डर पेन, कहीं कैच हो जाएगा, पैर में कहीं हो जाता है, क्योंकि पेन इज एसोसिएटेड विद इमोशन नॉर्मली, है ना। सो पेन वाले तो हमारी बॉडी में, मतलब जिस तरह से ह्यूमन बॉडी वर्क करती है उसमें कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब वैसे तो स्वेलिंग होता है, बट इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं वो जैसे ही मेंटली कोई थॉट ऐसा चलता है टॉक्सिक, ऑल्सो कुड बी एनीथिंग, ओके, बट मेंटली अगर कोई टॉक्सिक थॉट चल रहा है, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, फियर, ये सारी चीजें प्रो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स इंक्रीज करती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से इंस्टेंट पेन हमको फील होगा, कहीं पे पेन शुरू हो जाएगा। सो अगर वो पेन आपको ठीक करना है तो आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। पेन किलर आपका थैंक यू होगा, और स्पेशली जिस एरिया में आपको ज्यादा कंसर्न चल रही है अपने दिमाग में, उसके लिए आप ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दो। सपोज आपको पैसे की चिंता हो रही है, ठीक है, और चिंता करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपका मेंटल टॉक्सिसिटी बढ़ता जा रहा है, इमिजिएटली आप उस एनर्जी को चेंज करो और आप लिखो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मनी दैट आई हैड, थैंक यू सो मच दैट मुझे एजुकेशन मिली बचपन में, थैंक यू सो मच कि मुझे हमेशा से बहुत अच्छा खाना खाने को मिला, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई got to wear such lovely dresses all my life. I'm very, very grateful that I always had a perfect vision. I'm very grateful that I always had shoes to go to school. And every year I got new shoes because my body size was constantly increasing. I got clothes and shoes to fit into that. I'm so grateful that I had such amazing friends in school and college. I'm so grateful that I could go to college. I'm so grateful for all the money, that I have in my account right now. So whatever it is, you have to change that energy. Only then that inflammatory markers जो होते हैं वो नीचे चले जाएंगे, उनका लेवल जैसे ही नीचे चला जाएगा, बिकॉज अगर कहीं पे पेन हो रहा है वो इन्फ्लामेशन के कारण ही होता है। और इन्फ्लामेशन कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है थैंक यू, gratitude and love. Okay, these are the two strongest feelings जिससे instantly आपके inflammatory markers body में कम हो जाते हैं। People who know scientifically, they are called cytokines, chemokines and interleukin 6. ये chemical names हैं उन inflammatory markers का जो increase होने लग जाते हैं जैसे आपके toxic thoughts आते हैं। और क्योंकि रिश्तों में बहुत ज्यादा टॉक्सिक थॉट्स आते हैं इसलिए आपको मेरा ये लेक्चर सुनना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम अपनी एनर्जी, देखो एनर्जी खत्म तो नहीं कर सकते, एनर्जी ट्रांसफॉर्म बहुत आराम से हो जाती है, ठीक है। थैंक यू अगर आप उसमें घोल देते हो, डिसॉल्व कर देते हो, ठीक है, अपने आप उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। एंड क्वांटम लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, तो अपने आप जब सेल्स चेंज हो रहे हैं, उनकी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी विल गेट बेटर एंड बेटर। एंड बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब थैंक यू आप डिसॉल्व कर रहे हो अपने सेल के साइटोप्लाज्मिक वाटर में, ठीक है, तो अपने आप एनवायरमेंटल डिफरेंस देखोगे और आपको अपने आजू बाजू इर्द गिर्द नजर आने लग जाएंगे, इवेंट्स, पीपल एंड सर्कमस्टांसेस चेंजिंग। Okay, so this is the best way to do it. So we continue reading with the next topic. Anuradha, please, would you read it? Yes, ma'am. And with what measure ye made, it shall be measured to you again. 2 Corinthians 13:8. 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 2 Cor
The good you do for others comes back to you in like measure, and the evil you do returns to you by the law of your own mind. If a man cheats and deceives another, he is actually cheating and deceiving himself. His sense of guilt and mood of loss inevitably will attract loss to him in some way at some time. His subconscious records his mental act and reacts according to the mental intention or motivation. Your subconscious mind is impersonal and unchanging, neither considering persons nor respecting religious affiliations or institutions of any kind. It's neither compassionate nor vindictive. The way you think, feel, and act towards others returns at last upon yourself. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप जो करोगे वो भरोगे. जो आप एनर्जी जिस भी तरीके की आप जो छोड़ रहे हो वो आपके पास वापस आएगी इन द सेम मेजर. एंड द इविल जो हम करते हैं किसी के लिए बाय द लॉ ऑफ योर ओन माइंड विल रिटर्न टू यू. ठीक है, जो इविल आपने कहा है वो आपके पास वापस आएगा. और अगर किसी ने किसी को चीट किया है या डिसीव किया है अनदर पर्सन को, ठीक है, वो जो चीटिंग और डिसीविंग है वो सारा गिल्ट के फॉर्म में वापस आएगा. और गिल्ट एक एक्सट्रीमली नेगेटिव फीलिंग होती है. इट्स लाइक एन एनर्जी वैम्पायर. ठीक है, वो कभी जीने नहीं देगी अगर हमने किसी का कुछ गलत किया है तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें दैट हम बहुत सोच समझ के वर्ड्स बोलें. और हमारे जो मेंटल थॉट्स है वो भी दे शुड नॉट बी नेगेटिव या टॉक्सिक बिल्कुल भी. बिकॉज जो मेजर हम जिस मेजर से हम लोगों को देंगे थॉट्स, वर्ड्स या एक्शंस में, ओके, इट इज नॉट जस्ट एक्शंस. अगर थॉट में भी आपने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो आपके जिंदगी में बुरा आएगा. और ये साइंस होती है, तो ये चाह के भी चेंज नहीं हो सकता है, ये होगा ही होगा. इट्स अ लॉ. लॉ मीन्स लॉ. इट डजंट चेंज, इट्स अनचेंजेबल. ग्रेविटी जैसे लॉ होती है ना, कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे वो वापस नीचे आके गिरेगी. ठीक है, उसी तरीके से ये लॉ है. अगर टॉक्सिक थॉट्स आपके किसी के बारे में है आपके वापस आएंगे वो आपके पास. ठीक है, सो इट सेज द वे यू थिंक, feel and act towards others returns at last upon yourself. मुझे पैसे ले लीजिए. Let us be very careful about the whole thing. Hanji. The daily headlines made him sick. Begin now to observe yourself. Observe your reactions to people, conditions, and circumstances. How do you respond to the events and the news of the day? It makes no difference if all the other people were wrong and you alone were right. If the news disturbs you, it is your evil because your negative emotions robbed you of peace and harmony. A woman wrote me about her husband, saying that he goes into a rage when he reads what certain newspaper columnists write in the newspaper. She added this constant reaction of anger and suppressed rage on his part brought on bleeding ulcers, and his physician recommended an emotional reconditioning. I invited this man to see me and I explained to him the way his mind functions, indicating how emotionally immature it was to get angry when others write articles with which he disapproves or disagrees. He began to realize that he should give the newspaper man freedom to express himself, even though the latter disagreed with him politically, religiously, or in any other way.
In the same manner, the newspaper man would give him freedom to write a letter to the newspaper disagreeing with his published statements. He learned that he could disagree without being disagreeable. He awakened to the simple truth that it is never what a person says or does that affects him. It is his reaction to what is said or done that matters. This explanation was the cure for this man, and he realized that with a little practice, he could master his morning tantrums. His wife told me subsequently that he laughed at himself and also at what the columnists say. They no longer have power to disturb, annoy, and irritate him. His ulcers have disappeared due to his emotional poise and serenity. सो इसमें एग्जाम्पल है उस वाइफ का जो मैं आपको अभी बता रही थी कि बॉडी में जो बीमारियां होती हैं ना, दे ऑल कम फ्रॉम द ब्रेन, द माइंड. इसीलिए कहते हैं आप आजकल सारी बीमारियों को हम बोलते हैं स्ट्रेस बॉर्न और स्ट्रेस डिसऑर्डर्स. Diabetes is called stress diabetes. Hypertension happens because of stress. High cholesterol happens because of stress. Hypothyroidism happens because of stress. Infertility happens because of stress. सो इमेजिन, ये तो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से और एनवायरमेंटल में कितना हम कुछ चीजें नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, लगातार फियर में रह के और वरी में रह के और एंजाइटी में रह के, ऑल ऑफ दैट. सो हमको वो एनर्जी अपने आप पे वर्क करनी है. एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव द पावर टू चूज. ये किसी और उसमें लिविंग स्पीशीज में नहीं होती है. इट्स ओनली इन द ह्यूमन बीइंग्स दैट दे हैव द पावर टू चूज. So please at least make an effort to try to change the energy. मस्ती करो, घूमो फिरो, जो पसंद आ रहा है वो करो. मार्केट जाना शौक है, अच्छा लग रहा है लोग देख के, do that. You love going to a mall, do that. You love to sit and paint, do that. You love to write something, do that. You love to watch nice movies on Netflix, do that. But do the things. Love to spend time with certain people in your life, you do that. Okay, but try to keep your energy level high. अब एग्जाम्पल इसमें वुमेन का दिया हुआ है जिसने बताया था कि उसके हस्बैंड को हमेशा न्यूज़पेपर के कॉलम देख के और न्यूज देख के बहुत गुस्सा आता था और वो रेज होते थे और फिर वो कुछ कुछ बोलने लग जाते थे, ये क्या हो रहा है, यो ऐसे, ये है वो है, जो भी हो सकता है. पॉलिटिक्स के बारे में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और जब भी वो न्यूज पढ़ते थे तो कुछ कुछ बोलते थे. आई सी सो मेनी पीपल गवर्नमेंट के लिए लाइक प्रो मोदी जी एंड लाइक इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं लोगों के गवर्नमेंट को लेके, बीजेपी एंड दिस एंड दैट, एंड इतना ज्यादा बोलने लग जाते हैं अननेसेसरीली. व्हाई टू बी ओपिनियटेड अबाउट देम? Every government is trying its best. It's not that one government is the best over the other. Everything is handling so well. So when here also, like in Delhi, when COVID had happened, I think the best, बहुत अच्छे तरीके से Delhi handle हुआ था. It's the capital of India. बहुत ओवर पॉपुलेटेड है. एनसीआर को भी संभालता है दिल्ली के साथ में गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, ठीक है, ये भी दिल्ली पेरीफेरी में ही आता है. सो इस तरह से इतना कुछ करना पड़ता है. द गवर्नमेंट डिड सच अ ब्यूटीफुल जॉब, बट पीपल वर टॉकिंग सो बैड अबाउट लाइक. और अभी भी विद द फ्लड टाइम्स एंड ऑल इतना अच्छे से रिहैबिलिटेट किया हुआ है. बहुत सारे लोगों का लाइक वाटर लेवल राइज होने की वजह से, बिकॉज यमुना नदी बिल्कुल दिल्ली के बीच में से बीचों बीच होके गुजरती है और यमुना नदी क्योंकि डेंजर लेवल से हाई है तो इतने लोग को रिहैबिलिटेट करना पड़ा और इतने ब्यूटीफुली गवर्नमेंट ने उनको अकोमोडेशंस दिए हुए हैं, उनको खाना मिल रहा है. सो आई माई सेल्फ सीन इट. ओके, सो बहुत अच्छा है, मतलब कोई वैसा नहीं है, बट स्टिल पीपल गेट इनटू रेज अबाउट द गवर्नमेंट. वो ऑपोजिशन गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, वो है. तो ये वाले जो जिनका एग्जाम्पल दिया हुआ है किताब में, उनके जो हस्बैंड थे वो भी बहुत रेज में आ जाते थे कुछ न्यूज़पेपर की. मे बी वो किसी पॉलिटिकल उसको फेवर करते हो या जो भी है, व्हाटएवर बी द रीजन. सो जिसके कारण उनको स्टमक में अल्सर्स होने लग गए. पहले एसिडिटी हुई, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि जब भी कोई एसिडिटी वाला पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसका हमेशा दिमाग का इलाज करते हैं, क्योंकि उसको खाने पीने दवाइयों से ठीक वो होने ही नहीं वाला है. ठीक है, उनका इलाज दिमाग से ही होता है. That day, I would first tell that person to meditate every day for 5 minutes or 10 minutes and do a box breathing. Okay, that is the only way and the best way to cure ulcerations, hyperacidity, colic pains and all of that.
ठीक है, बिकॉज इट ऑल कम्स फ्रॉम द ब्रेन, क्योंकि एक वेगस नर्व चलती है दिमाग से जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से होके इंटेस्टाइन तक जाती है, वो लॉन्गेस्ट नर्व होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, वो दिमाग से चालू होती है। और इसीलिए दिमाग और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो गट होती है आपकी या डाइजेस्टिव कैनाल होती है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। तो जो दिमाग में चल रहा होता है वो हमेशा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आप उसको देखोगे, किसी न किसी फॉर्म में वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है ना। सो दैट इज हाउ वी नीड टू वर्क। और इस पर्सन को अल्सर्स भी इसीलिए हुए थे बिकॉज दिस पर्सन वाज यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री, एंगर का इमोशन था बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट। तो जिन जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, बी रेडी फॉर द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इट इमीडिएटली कम्स, यू नो। सो इसलिए हम अपने एंगर के इमोशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम देखेंगे कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों को। अननेसेसरली गुस्सा होना, अननेसेसरली मतलब इतना पीपल स्टार्ट रेजिंग विद एंगर, यू नो, इतना नेगेटिव इमोशन उनका आ जाता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी कैन बिकम काम एंड पीसफुल पर्सन। फिर जब डॉक्टर मर्फी के पास वो हस्बैंड गए, जो उस लेडी के बारे में जिनके हस्बैंड मतलब द गाय हु हैड स्टमक अल्सर्स, वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास गए जो इस बुक के ऑथर है। और फिर उन्होंने बताया कि देखो आप ओपिनियन होल्ड कर सकते हो, यू कैन डिसएग्री बट यू डोंट हैव टू बिकम डिसएग्रीएबल, यू नो, सो यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस दैट। अब बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट में होती है जो हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, जैसे अगर आपको अभी जाना है एयरपोर्ट और सडनली बहुत तेज बारिश होने लग जाए, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना। तो नहीं आपको पता है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट मेरे यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है एंड इट्स रेनिंग डाउन पोरिंग सो हैवी, so you don't like it, so there are so many things that you don't like but always have a way out, no? और वो भी ऐसी चीज के बारे में कि न्यूज़पेपर देख के या पॉलिटिशियंस को यू नो लाइक उनके साथ में इस तरह से नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेस करना, नॉट गुड। सो पीपल हु गेट वेरी वेरी एंग्री, जिनका एंगर डोमिनेंट इमोशन होता है, प्लीज ट्रांसफॉर्म दैट, ओके, एंड ट्राई एंड बिकम काम। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप एफर्मेशंस करना शुरू कर दो। टेल योरसेल्फ, आपकी सेल्फ टॉक ये होनी चाहिए that I'm peaceful and calm under all circumstances with ease. Okay, I'm peaceful and calm under all circumstances with ease. And you will see that अब वही situation आएगी जो आपका पहले ट्रिगर होती थी, अब वो काम होती जाएगी। और अब आप देखना कि आपके हेल्थ में जो ब्रेकडाउन था अभी तक, that will disappear, ठीक है, दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी, आपकी दवा बंद हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। जब हम लोगों को पेशेंट्स को बोलते हैं कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, आप बस बॉक्स ब्रीदिंग करो, ठीक है। अच्छा बाय द वे बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है, इन केस यू वांट टू डू इट, इट इज 4-4-4 and 4, दैट इज 4 इनहेलेशन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग मतलब पेट से सांस लेनी है, चेस्ट से नहीं। 4 सेकेंड्स, ठीक है, इनहेल करो, पेट फूल जाएगा आपका। 4 सेकेंड्स फूले हुए पेट को होल्ड करो, ठीक है, सो ये 4। फिर एक्सेल करो, सांस छोड़ो एकदम 4 सेकेंड्स, और फिर वो पिचका हुआ जो पेट है उसको आप होल्ड करो 4 सेकेंड्स के लिए। सो दिस इज कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग। और बॉक्स ब्रीदिंग की वजह से मेंटल एंड फिजिकल मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। तो और अगर आप इसको 5 मिनट भी कर लोगे एक दिन में, यू विल सी यू नो ह्यूज डिफरेंस इन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो दिस इज व्हाट लाइक, इसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आप पेट से सांस ले रहे होते हो, और उसकी वजह से आपकी क्रॉनिक एसिडिटी या अल्सरेशन या ऐसी जो भी चीज अभी तक हो रही थी वो ठीक होने लग जाती है। दिमाग मतलब यू बिकम अ पावरफुल पर्सन, और आप क्रिएटर मोड में बहुत आसानी से अब जा पाओगे बॉक्स ब्रीदिंग की वजह से, क्योंकि एकदम से आपके नर्वस सिस्टम का इम्पैक्ट आपके सेल्स में होता है इसमें, ठीक है। और बहुत सारे फायदे हैं। जब भी मैं कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लूंगी ऐसा वाला ये फ्री वेबिनार्स आई कीप डूइंग, जो अदर देन मेरा कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आई विल इनवाइट यू, लिंक आई विल शेयर हियर आल्सो, ठीक है। आई वाज प्लानिंग टू डू दैट इन एनी केस अ लिटिल यू नो लाइक बहुत जल्दी, of course like next week I'm traveling and then after that also I'm traveling, but I'll figure out a day and we'll do that, ठीक है। So this is what it is। इसमें हमको पता लग गया है कि स्टमक अल्सर दवा से नहीं ठीक होते हैं, ठीक है, वो दिमाग ठीक करने से ठीक होते हैं। इसलिए अपने दिमाग पे वर्क करो, वर्क ऑन ग्रेटिट्यूड, वर्क ऑन बीइंग काम, वर्क ऑन योर सेल्फ टॉक आपकी क्या है, ठीक है, वर्क ऑन दैट। नेगेटिव मत सोचो लोगों के बारे में एंड ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज हाउ इट विल, सो इट सेज दैट अब वो इंसान ऐसा हो गया
कि they no longer have power to disturb, annoy or irritate him. मतलब वो सेम कॉलम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन इस बंदे पे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसका, ठीक है. उसके अल्सर्स डिसअपियर हो गए हैं और वो इमोशनल पॉइजन सेरेनिटी में है, मतलब काम है. सेरेनिटी मीन्स काम, ठीक है, और बिल्कुल पॉइज्ड है, कोई एंगर मोड नहीं है ना, उसकी बॉडी के ऐसे इस तरह से जेस्चर्स गुस्से वाले होते हैं एनी मोर. तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया है ना, इसलिए. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. I hate women, but I like men. I hate women, but I like men. A private secretary was very bitter towards some of the girls in her office because they were gossiping about her. And as she said, spreading vicious lies about her. She admitted that she did not like women. She said, I hate women, but I like men. I discovered also that she spoke to the girls who were under her in the office in a very haughty, imperious, and irritable tone of voice. She pointed out that they took a delight in making things difficult for her. There was a certain pomposity in her way of speaking, and I could see where her tone of voice would affect some people unpleasantly. If all the people in the office or factory annoy you, isn't it a possibility that the vibration, annoyance, and turmoil may be due to some subconscious pattern or mental projection from you? We know that a dog will react ferociously if you hate or fear dogs. Animals pick up your subconscious vibrations and react accordingly. Many undisciplined human beings are just as sensitive as dogs, cats, and other animals. I suggested a process of prayer to this private secretary who hated women, explaining to her that when she began to identify herself with spiritual values and commenced to affirm the truths of life, her voice, mannerisms, and hatred of women would completely disappear. She was surprised to know that the emotion of hatred shows up in a person's speech, actions, in his writings, and in all phases of his life. She ceased reacting in the typical resentful and angry way. She established a pattern of prayer which she practiced regularly, systematically, and concisely in the office. 1 second, Anu. So इसको मैं थोड़ा हिंदी में समझा देती हूँ for people who don't understand so much English, क्योंकि किताबें हम इंग्लिश में ही करते हैं. So इसमें एक ये लड़की प्राइवेट सेक्रेटरी थी, ऑफिस में काम करती थी, और वो बार बार ये बोलती थी दैट मैं विमेन को हेट करती हूँ, मुझे लड़कियां औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उनको हेट करती हूँ, और बट आई लव द मैन. ओके. फिर एक्चुअली उसका इसलिए था बिकॉज वो कहती थी कि सारी लड़कियां जो ऑफिस में है मेरे अगेंस्ट, मेरे पीछे से मेरे पीठ पीछे गॉसिपिंग करती है, मेरे बारे में मेरा हंसी उड़ाती है और मुझे बुरा बुरा बोलती है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कियां. लेकिन एक्चुअली जब पता लगा तो उसी का टोन ऑफ वॉइस, मैनरिज्म्स बहुत रूड थे सबकी तरफ, इस वजह से लोग उससे बात नहीं करते थे. फिर वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास आई कि मेरे साथ ऐसा होता है या जो भी है, ठीक है. तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनको एक एफर्मेशन बताई कि आप लगातार इस चीज को बार बार अपने आप को बोलो, मतलब एफर्म करो, रीड करो, जो भी है. तो अब वो वाली एफर्मेशन हम पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने क्या बोला था. ठीक है अनुराधा, थोड़ा इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देना. The prayer was, क्या हुआ, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है कि किसी को भी नहीं आ रही? मैम अभी ठीक नहीं आ रही. अच्छा, पढ़ो अनु. The prayer was as follows. I think, speak, and act lovingly, quietly, and peacefully. I now radiate love, peace, tolerance, and kindliness
to all the girls who criticized me and gossiped about me. I anchor my thoughts on peace, harmony, and goodwill to all. Whenever I'm about to react negatively, I say firmly to myself, I am going to think, speak, and act from the standpoint of the principle of harmony, health, and peace within myself. Creative intelligence leads, rules, and guides me in all my ways. The practice of this prayer transformed her life, and she found that all criticism and annoyance ceased. The girls became co workers and men's along life's journey. She discovered that there is no one to change but myself. या तो अगर आपकी जिंदगी में बाहर की दुनिया में कोई भी टर्मोइल हो रहा है, कोई किसी स्पेसिफिक तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब आपको अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, इसका मतलब है वर्क आपको अपने आप पे ही करना पड़ेगा, बिकॉज आपके माइंड से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है आपको वो वापस मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने आप पे वर्क करना है। आफ्टर ऑल इट्स योर वन लाइफ दैट यू हैव, you are the best person to yourself, right? So you have to take care. So ये वाला है, ये उन्होंने affirmation बार बार पढ़ा, प्रेयर बोला उन्होंने, और अपने अपने आप पे, ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न चेंज हो जाए। और वो बोलती क्या थी कि आई थिंक, स्पीक एंड एक्ट लविंगली, मतलब मैं सोचती हूँ, बोलती हूँ और एक्शन भी मैं बहुत लविंगली और बहुत क्वाइटली और पीसफुली लेती हूँ, और मेरी जिंदगी से बहुत सारा लव, पीस, टॉलरेंस और काइंडनेस उन सारी लड़कियों के लिए निकल रही है जो अभी तक मेरे बारे में गॉसिप करती थी और मेरे बारे में बुरा बोलती थी। अब मैं अपने दिमाग में पीस, हार्मनी एंड गुडविल के थॉट्स रखूंगी और मैं नेगेटिवली नहीं, और जब भी मैं नेगेटिव मेरा अगर कुछ रिएक्शन आएगा तो मैं बार बार अपने आप को याद दिलाऊंगी दैट अब मुझे थिंक, स्पीक और एक्ट लेना है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, हेल्थ, पीस विद इन माई सेल्फ। और मैं बार बार अपने आप को यही याद दिलाती रहूंगी कि हार्मनी, हेल्थ और पीस मेरे दिमाग के अंदर है और मेरे सारे एक्शन उसी से कलर्ड होंगे। ठीक है, और मेरे अंदर जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है वो मुझे लीड करेगी, मुझे रूल करेगी और मुझे गाइड करेगी हर तरीके से। ठीक है, तो ये प्रेयर उस लड़की ने अपने आप को बार बार बोल दी, जिसके कारण उसके सारे रिश्ते बहुत हार्मोनियस हो गए और उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया। तो इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सिचुएशन आपको अपनी जिंदगी में चेंज करनी है तो दूसरे पर्सन को बदलने की बजाय या उस सिचुएशन को चेंज करने की बजाय आप अपने दिमाग में उस चीज को चेंज करो। ठीक है, और अपने आप आपके लाइफ में वो चेंज आ जाएगा। एंड आई विल शेयर माय रिलेशनशिप का विक्ट्री विथ यू, लाइक यू नो। सो ये हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच अनु फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू मैम। तो अब कल वाला जो टॉपिक है वो है हिज इनर स्पीच हेल्ड बैक हिज प्रमोशन। ठीक है, तो किस तरह एक आदमी को प्रमोशन चाहिए था, जब भी लोगों को अप्रेजल और इंक्रीमेंट्स चाहिए तो क्या वर्क करता है, वो एक चीज कल हम पढ़ेंगे। अगर आपको प्रमोशंस या अप्रेजल्स चाहिए बहुत अच्छे, तो वो कभी भी लड़ने झगड़ने से, एचआर को लेटर्स लिखने से नहीं आती है, वो आपकी सेल्फ टॉक चेंज करने से आएगी। ठीक है, पैसा आपको कितना चाहिए उतना आपके पास आएगा, अब कहाँ से आ रहा है इसके बारे में, बट वो इजिली और एफर्टलेसली आएगा, क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक ये है दैट आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग मनी इजिली एंड एफर्टलेसली। ठीक है, वो आपको सारे फोर्सेस के थ्रू आता है। द यूनिवर्स इज डिलीवरिंग दैट टू यू, इट्स नॉट ह्यूमन बीइंग्स हु गिव अप्रेजल्स। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और हमने ये सब साइंस पहले रियलाइज ही नहीं की थी, और हमने बहुत नेगेटिव थॉट्स, कई लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि क्यों मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, क्यों उसका हुआ, मेरा अभी भी यही है, मेरा अभी भी वही है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पहले अपने सारे रिश्ते, अगर आपको बहुत सुंदर जिंदगी चाहिए तो अपने सारे रिश्तों पे वर्क करो। आप चूज करो कि कौन कौन से वो रिलेशनशिप्स हैं जो आपको नापसंद है। हेट तो हम अब किसी को करते नहीं होंगे, क्योंकि हम बहुत टाइम से स्केल कर रहे हैं ये वाली जर्नी जो हमारी है ग्रैटिट्यूड की। एंड ऑल्सो द अदर बुक्स दैट वी रीड आर वेरी वेरी पावरफुल, जिनसे हमारी बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो रही है।
तो वो तो हम करते, हेट तो हम अब किसी से करते नहीं है ना, लेकिन हम डिसलाइक कर सकते हैं लोगों को, ठीक है, वो हम शायद अभी भी करते हैं, है ना, क्योंकि वो तो नेचुरल इमोशन है। अब हेट से आप डिसलाइक पे आ गए हो, ये बहुत बड़ा अप्लॉज है सबके लिए। सो अब डिसलाइक जिनको करते हैं, अब हमको क्या करना है, हमको 100% रिलेशनशिप्स रिस्टोर करनी है, ठीक है, सबके साथ, जिनके साथ भी है, आप अपने मन में उनके लिए, उनके प्रति आपका क्या भाव है, आप उस निधि के लिए सरिता जी, आई थिंक यू नीड टू म्यूट। ठीक है, तो आप क्या होल्ड करते हो उनके लिए, इस पे आप वर्क करो। उसकी वजह से आप देखना कि आपके पैसे में बरकत आती जाएगी, योर इनकम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड यू विल स्टार्ट रिसीविंग मनी फ्रॉम नोवेयर। आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, आप फाइनेंशियली आप ग्रो करने लग जाओगे। करियर प्रोस्पेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आएंगी। आपकी हेल्थ में अगर चैलेंजेस थे, छोटी मोटी चीजें भी थी या बड़ी चीजें भी थी, आपकी दवाइयां टेपर होने लग जाएंगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी, ठीक है। और बहुत अच्छे, सो वर्क ऑन रिलेशनशिप्स, बिकॉज ये बहुत पावरफुल चीज होती है। और इसीलिए जब हमने मैजिक बुक पढ़ी थी तो रिलेशनशिप हमारा सबसे पहले आया था। कहते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट शिप ऑफ द लाइफ इज रिलेशनशिप। सो व्हेन यू बोर्ड द शिप ऑफ द सक्सेसफुल रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग इन योर लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग। इसीलिए सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 3 था, फर्स्ट एंड सेकेंड तो काउंट माई ब्लेसिंग्स एंड मैजिक वो था, है ना, मैजिक रॉक। तो थर्ड वाला जो चैप्टर था वो हमारा रिलेशनशिप से ही शुरू हुआ था, क्योंकि एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और क्योंकि रिलेशनशिप में एज आई मेंशन इमोशंस बहुत जल्दी आते हैं, गुड एंड बैड एंड हेट्रेड एंड एंगर एंड लव एंड ऑल ऑफ दैट। सो इसलिए हम अब से अपनी रिलेशनशिप से वर्क करेंगे। हम क्यों अपनी जिंदगी को खराब रखें, है ना। We will love and we will accept everyone just the way they are and we will work on our inner workings. उस पे हम काम करेंगे, है ना। और अपने आप को बोलेंगे I love everyone and I accept everyone just the way they are, और my life radiates love, peace, harmony and goodwill to each and every person, you know, whom I know and whom I don't know. So ये हमारा constant thought होना चाहिए। अगर कहीं पे भी रुकावटें आपकी जिंदगी में आ रही हैं, आप सिर्फ इस एस्पेक्ट पे वर्क करो, आपकी ना बाकी चीजें भी आयन आउट हो जाएंगी बहुत आराम से। सो आई जस्ट share about my experience also, but I will have to, so it's like a formal